Hello, my dear little shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start our chapter number 8. And the name of your chapter number 8 is Water is Life. Okay. In this chapter, my dear student, we are going to see the following details like why we need water. Okay. What is the concept behind water cycle and what is water harvesting. Okay, as well as we are also going to see this topic, things that float or shrink in water. Okay, things which mix with water, and last but not the least, the topic of your chapter is measuring liquids. Okay, so all this topic we are going to see in our chapter number 8. Now come with me and let's start the chapter. If we look at the earth from outer space, it will look like a blue ball floating in space. This is because 3/4 of the planet is covered with water. अगर आप planet अर्थ को आउटर स्पेस से देखोगे ना माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों को ना एक ब्लू बॉल की तरह दिखेगा. ठीक है, एक ब्लू बॉल की तरह दिखेगा जो स्पेस में क्या हो रहा है, फ्लोट कर रहा है. ठीक है, और ये इसलिए होता है क्योंकि जो 3/4 प्लैनेट है हमारे अर्थ का, मतलब जो हमारा अर्थ का पार्ट है 3/4 पार्ट, वो क्या है, वो पानी से घिरा हुआ है. ठीक है, no other planet in the solar system has water like the water has water like the earth does. In our solar system, my dear students, how many planets we have total we have 8 planets. Okay, and among all these 8 planets, only planet earth has the ability of storing water in them. Okay, that's why earth is the only planet in our whole solar system which have water. If there was no water on earth, there would also be no living things on it. अगर अर्थ पे पानी ही नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, कोई भी और यहाँ पे लिविंग थिंग्स हो ही नहीं सकते हैं. ठीक है, बिकॉज इफ देयर इज नो वाटर देन देयर इज नो लाइफ. ओके, the ocean contains nearly 97% of the total water on earth. My dear student, जो हमारे अर्थ का 3/4 पार्ट है, इसमें से जो 97% है वो पूरा का पूरा हमारा क्या है, पानी है. But as the ocean water is salty and mixed with different minerals, we cannot drink it. लेकिन आपको पता है जो ये 97% वाटर है ना, ये बहुत ही ज्यादा सॉल्टी है. इसमें क्या है, सॉल्ट मिक्स्ड है, इसीलिए सॉल्ट के साथ और भी डिफरेंट इसमें मिनरल्स मिले हुए हैं, इसीलिए हम लोग इसको पी नहीं सकते हैं. ठीक है, वी नीड फ्रेश वाटर टू लिव. अच्छा, अगर हम ये पानी नहीं पी सकते देन व्हाट टाइप ऑफ वाटर वी ड्रिंक. ओके, वी ड्रिंक फ्रेश वाटर. Okay, only 2.5% of the water on earth is fresh water. देखिए, out of 100%, only 97% is our salty water. Sorry, out of 100%, 97% is salty water. Rest of the 2.5% contains only fresh water. तो देखिए आप, हमारे प्लैनेट अर्थ पे सिर्फ पानी ही पानी तो है, इसीलिए तो इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. लेकिन 97% पानी इसमें कैसा है, सॉल्टी है. ठीक है, इसीलिए ये क्या दिखता है, पूरे स्पेस से अगर आप इसको देखोगे हमारे प्लैनेट अर्थ ब्लू कलर का दिखता है, लेकिन वो जो 97% पानी है वो हम पी ही नहीं सकते हैं. ओनली 2.5% वाटर वी कैन ड्रिंक. ओके, see, we cannot live without water. Water is presented in all things that we eat and drink. We can't survive without water. ठीक है, पानी हर चीज में प्रेजेंटेड है जिसको हम खाते हैं या पीते हैं. ठीक है, प्लांट एंड एनिमल्स टू कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. वी कैन सी, feel and drink water. Even not only we human beings, plants and animals also need water for their own survival. Okay, we can see water, we can feel water, and as well as we can drink water. Okay, now keep in mind fact, water does not have its own distinct shape. When we pour water into containers of different shapes, water takes the shape of the container it is poured in. देखो, वाटर का क्या होता है, वाटर का तो कोई शेप नहीं है, वाटर का कोई कलर नहीं होता है, इसीलिए वाटर को आप जिस भी कंटेनर में पोर करोगे वो उस कंटेनर का क्या करता है, शेप ले लेता है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर साइकिल. ओके, द वाटर साइकिल इन नेचर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर साइकिल, माय डियर स्टूडेंट? दिस इज अ पिक्चर ऑफ वाटर साइकिल. सी, the sun's heat warms up the water in rivers and seas. It gets converted into water vapor. अच्छा देखिए, जो सन की जो हीट आती है ना, उससे क्या होता है, जो सन की हीट आती है वो हमारे रिवर को और सी के वाटर को क्या करता है, गर्म कर देता है. ओके, और इससे क्या होता है, वो गर्म पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो देखिए जो हमारे ओशन वाटर्स है और जो हमारे रिवर वाटर्स है, ठीक है,
इन वाटर में जो पानी है हमारा, ठीक है, इसका क्या होता है, जो सन की रेज इस पे पड़ती है ना, तो इससे ये पानी गर्म हो जाता है, और गर्म होने के साथ साथ दोज वाटर्स स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू वाटर वेपर. देन water vapor rises in the higher cooler layers of the atmosphere and changes into water drops. तो water vapor क्या करते हैं, अब यही जो water vapor है अब ये convert होगा गैस में, तो ये धीरे धीरे क्या करते हैं, ऊपर की तरफ ये जाने लगता है, और जाने के साथ साथ ये एटमॉस्फेयर में डिपॉजिट होने लगते हैं, और जब ये एटमॉस्फेयर में डिपॉजिट होते हैं तो ये चेंज होने लगते हैं छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में. ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स. तो इसी तरीके से ये छोटे छोटे जो वाटर ड्रॉपलेट्स है एक साथ इकट्ठा होते 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 ये क्लाउड्स बना देते हैं, मतलब बादल बना देते हैं. हैवी क्लाउड बर्स्ट एंड गिव रेन. तो और फिर यही क्या होता है, जब ये क्लाउड बनते 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 और जब ये क्लाउड्स हमारे वाटर को होल्ड नहीं कर पाते हैं तो ये बरस जाते हैं, वही हमारा बरसात कहलाता है. ठीक है, रेन वाटर फॉल्स बैक ऑन द लैंड एंड इन वाटर बॉडीज. तो जो पानी भाप बन के ऊपर गया था वो पानी फिर से वापस आ गया रिवर्स में और ओशंस में. ठीक है, वाटर इज अगेन कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर बाय द सन. अब जो ये वाटर है ये दोबारा से वो वाटर साइकिल रिपीट कर रहा है. ठीक है, क्या हो रहा है, वो पानी आपका फिर से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है सन की हेल्प से, यानी सन की हीट से. द साइकिल रिपीट्स अगेन, और ये जो वाटर वेपर का साइकिल है ये कंटिन्यूअसली रिपीट होता रहता है. ठीक है, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है वाटर साइकिल का. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी वाटर हार्वेस्टिंग. अब ये वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, चलो देखो. वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एनी रन ऑफ वाटर. ठीक है, देखिए जो वाटर हार्वेस्टिंग होता है, वाटर हार्वेस्टिंग वो प्रोसेस है जब आप किसी भी रनिंग वाटर को स्टोर करते हो. मतलब वाटर हार्वेस्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग इज दैट प्रोसेस इन विच यू स्टोर एनी रनिंग वाटर. ओके, The most common example of run off water is rain water. तो अभी run off water क्या है, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है आपका रेन वाटर. ठीक है, रेन वाटर सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल है आपके रनिंग वाटर का. ठीक है, वी कैन स्टोर रेन वाटर व्हाइल इट इज रेनिंग एंड कैन यूज इट लेटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन. ठीक है, तो देखो अब क्या होता है, ये बारिश का पानी आया, हम बारिश के पानी को स्टोर करके रख सकते हैं. ठीक है, और साथ ही साथ हम इस बारिश के पानी को हम लेटर ऑन यूज कर सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, जब हमारा ड्राई सीजन हो. ठीक है, तो वाटर हार्वेस्टिंग बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है, बट माय डियर स्टूडेंट्स हम अपने घरों में भी वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं इफ यू वांट. ओके, रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड ऑन रूफ टॉप्स इन टैंक. ठीक है, तो ये जो रेनफॉल होता है, ये जो रेन वाटर्स होते हैं, ये क्या होता है, हमारे छत पे जो टैंक्स लगे होते हैं ये वहां पे भी कलेक्ट हो जाते हैं. फ्लड वाटर्स फ्रॉम लोकल स्ट्रीम्स कैन बी कलेक्टेड एंड स्टोर्ड फॉर लेटर यूज. तो ये जो फ्लड वाटर आता है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लड, जब पानी क्या होता है, जब बहुत ज्यादा बरसात होती है और रिवर्स का, ओशंस का वाटर लेवल बढ़ जाता है, तो ये क्या करते हैं, ये पूरे एरिया को ड्रेन करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, तो इसी को कहा जाता है फ्लड. ठीक है, तो जो फ्लड वाटर्स होती हैं, जो लोकल स्ट्रीम्स यानी जो लोकल रिवर से ये आती हैं, ये क्या होता है, ये एक साथ एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाती है. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इन पानियों को भी आप यूज कर सकते हो वेस्ट होने से. ठीक है, इनको क्या करो, आप इनको स्टोर कर लो. ठीक है, उसको आप स्टोर कर सकते हो, बहुत बड़े बड़े हार्वेस्टेड टैंक्स आते हैं, आप उसमें स्टोर कर सकते हो. दिस कलेक्टेड वाटर कैन बी स्टोर्ड अंडर द ग्राउंड और एज ग्राउंड वाटर. ठीक है, और साथ ही साथ ये जो फ्लड वाटर्स होते हैं, यू कैन कंजर्व दोस फ्लड वाटर एज इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर. ठीक है, रेन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर फॉर अस. ठीक है, और हमारे लिए वाटर का जो सबसे ज्यादा प्राइमरी सोर्स है वो क्या है, हमारा रेन है. रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर्स आर ऑल सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ वाटर. ठीक है, हमारे रिवर्स हैं, हमारे लेक्स हैं, हमारे ग्राउंड वाटर है, ये तीनों के तीनों क्या है, हमारे वाटर के सेकेंडरी सोर्सेज हैं. We depend entirely on secondary sources of water. ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग means we human beings totally dependent upon this secondary sources of water. Okay, so this is the process of water harvesting. Okay, now keep in mind fact. 22nd March is celebrated every year as the World Water Day. ठीक है, जो 22 मार्च है यानी 22 मार्च यानी 22nd ऑफ मार्च ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल वर्ल्ड वाटर डे के फॉर्म में. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी द थिंग्स दैट फ्लोट और श्रिंक इन वाटर. पानी है. ठीक है, तो पानी में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो डूब जाती है या जो फ्लोट करती रहती है. नाउ सी, things that are lighter than water float and things that are heavier than water shrink. Very simple concept behind this. The things which have lighter than the weight of water, they float in water, and the things which have a heavy weight than water, they shrink down. Okay,
सम थिंग्स फ्लोट एंड अदर श्रिंक व्हेन पुट इन वाटर, इसीलिए आप देखोगे कुछ चीजें फ्लोट करती रहती है और कुछ चीजें पानी में डूब जाती हैं. अ मार्बल एंड एन आयरन नेल सिंक वेयर एज अ ड्राइड लीफ एंड स्ट्रॉ फ्लोट इन वाटर. अगर आप एक एग्जांपल लेना चाहो, यू कैन टेक द पीस ऑफ मार्बल और यू कैन टेक द एनी पीस ऑफ आयरन नेल. तो ये दोनों क्या होता है, इन दोनों की जो वेट होती है ना, ये दोनों का वेट हमारे पानी के वेट से ज्यादा होता है, इसीलिए दोनों डूब जाते हैं. लेकिन ऑन द अदर हैंड साइड माय डियर स्टूडेंट, इफ यू कैन सी द लीफ एंड स्ट्रॉ, जो लीफ और प्लास्टिक के स्ट्रॉज होते हैं, इनका वेट क्या होता है, पानी से कम होता है. तो जब आप इसको पानी में फेंकोगे तो ये डूबेंगे नहीं, ये फ्लोट करते रहते हैं. ठीक है. it is possible to shape material in such a way that they can be made to float. और ये सारी चीजें देख के हम लोगों को ये आइडिया मिलता है कि कौन सी चीजें हमें किस शेप में बनानी है ताकि वो पानी में फ्लोट कर सके. ओके, फॉर एग्जाम्पल एन आयरन नेल shrinks but a huge ship made of iron floats. अभी मैंने आपसे कहा कि आयरन नेल तो पानी में डूब जाता है बिकॉज द वेट ऑफ आयरन नेल इज मच हैवियर देन द वेट ऑफ वाटर. लेकिन एक जो इतनी बड़ी शिप है जो ऑलरेडी से बनी हुई है आयरन से, वो क्यों नहीं डूबता है? क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक यही लगाया जाता है जो अभी हम लोगों ने देखा है. ठीक है. इसको लोगों को जब आइडिया मिल जाता है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ आयरन का यूज करके, सिर्फ और सिर्फ मार्बल का यूज करके या सिर्फ और सिर्फ किसी और हैवी मटेरियल का यूज करके कोई चीज आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वो पानी में डूब जाएगा. इसीलिए कोई भी कंस्ट्रक्शन चाहे शिप्स होते हैं, इसमें हैवी मटेरियल्स एज वेल एज लाइट मटेरियल्स दोनों यूज किए जाते हैं ताकि शिप्स क्या हो, वो वाटर में फ्लोट करते रहें. ठीक है. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ द शिप. Okay, now keep in mind fact, icebergs, which are really big chunks of ice, float in the sea. Icebergs. अब ये icebergs क्या होते हैं? देखिए icebergs आप देखोगे ना तो दूर से आपको ऐसा दिखेगा सोया चंक्स की तरह. ठीक है. सोयाबीन्स आप सब लोग खाते हो, सोया चंक्स आप देखते हो छोटे छोटे से होते हैं. तो icebergs आपको उसी शेप में दिखेंगे कि बहुत बड़े बड़े से आइस के चंक्स होते हैं जो पानी में फ्लोट करते रहते हैं. लेकिन एक बात बताओ, आइस जो होता है वो तो सॉलिड फॉर्म है वाटर का, वो क्यों फ्लोट कर रहा है? क्योंकि जितना वो ऊपर होता है, ठीक है, उससे ज्यादा वो नीचे होता है. ठीक है. पानी के वो नीचे होता है. अगर ऊपर आपका आइसबर्ग इतने बड़े शेप में है तो नीचे उसका इतना बड़ा शेप होगा. ठीक है. तो टोटल उस आइसबर्ग का शेप क्या है? ठीक है, इतना बड़ा हुआ, टोटल इतना बड़ा उसका शेप हुआ. इसीलिए आप लोगों ने देखा इसमें क्या होता है, इसके पीछे यही लॉजिक है. इसीलिए आइस कभी भी, जो आइसबर्ग्स होते हैं वो कभी भी डूबते नहीं है पानियों में. ठीक है. वो टूट सकते हैं, दे कैन मेल्ट एंड देन कैन दे कन्वर्टेड अगेन इन वाटर, लेकिन वो कभी डूबते नहीं है. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू सी थिंग्स दैट मिक्स. अब हम वो चीजें देखेंगे जो पानी में मिक्स हो जाती हैं. अभी हमने क्या देखा, अबाउट दोस थिंग्स व्हिच कैन सिंक और व्हिच कैन फ्लोट इन वाटर. नाउ वी आर गोइंग टू सी द थिंग्स व्हिच कैन मिक्स विथ वाटर. Water can dissolve many things in it. When a solid is completely absorbed in a liquid, it is said to have dissolved in the liquid. वाटर में बहुत सारी चीजें आप डिसॉल्व कर सकते हो. ठीक है. जब कोई सॉलिड पार्टिकल पूरा का पूरा पानी में घुल जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, डिसॉल्व्ड. ठीक है. फॉर एग्जांपल सॉल्ट एंड शुगर डिसॉल्व इन वाटर. सॉल्ट और शुगर ये दोनों क्या एक सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब आप इसको वाटर में मिक्स करते हो तो क्या होता है, ये दोनों के दोनों आपके पानी में घुल जाते हैं. Take a glass filled with water. Now add some sugar to the water. अब आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है. इसमें क्या करना है, आप एक ग्लास लीजिए और उसमें पानी भरिए. ठीक है. और उसमें आप उसमें सॉल्ट ऐड कर, सॉरी शुगर ऐड कीजिए, नॉट सॉल्ट, सॉरी फॉर माय मिस्टेक. आप एक ग्लास में पानी लीजिए और उसमें आप शुगर ऐड कर दीजिए. व्हाट हैपेंस, क्या होगा अगर आप शुगर ऐड करते हो? वाटर एंड शुगर मिक्स टुगेदर. होगा तो यही ना कि पानी और जो शुगर है वो आपका पूरा का पूरा मिक्स हो जाएगा. तो इसी को कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड अ शुगर सोल्यूशन. इसी को हम शुगर सोल्यूशन कहेंगे. क्योंकि जब आप उस पानी को पियोगे ना, ओके, तो वो आपको स्वीट लगेगा पीने में. ठीक है. You cannot see the grains of sugar in it. लेकिन वो आपको मीठा तो लग रहा है, but my dear students, you can't see the grains or the particles of sugar. क्योंकि वो क्यों नहीं देख सकते आप? क्योंकि वो पानी में क्या हुआ है, पूरा का पूरा मिक्स हो गया है. Similarly, when salt is dissolved in water, it forms a salt solution. उसी तरीके से on the another hand side, if you mix salt particle in water, they also got dissolved in water. Okay, and now that solution we called as salt solution. ठीक है. Now take another glass and fill it water. अब आपको दूसरा एक्सपेरिमेंट करना है. एक ग्लास पानी लीजिए. ठीक है. Add some salt and stir the solution. और उस एक ग्लास पानी में सैंड डाल दीजिए, मतलब बालू डालिए. ठीक है. और बालू डालने के बाद आप उसको मिक्स कीजिए. You will see that sand does not mix with water. अब आप ये देखोगे जो सैंड है ना वो वाटर में मिक्स
नहीं हो रहा है। सैंड ग्रैन्यूल्स सेटल एट द बॉटम ऑफ द ग्लास। अच्छा, अगर सैंड मिक्स नहीं हो रहा तो क्या होगा, वो जो सैंड ग्रैन्यूल्स है, मतलब जो सैंड पार्टिकल्स है, आप देखोगे वो पानी में नीचे क्या होता है, बैठ जाता है। ठीक है, the ability of a substance to dissolve in a liquid is called its solubility. Now my dear students, here comes the term solubility. Now what is the meaning of solubility? Let's see. The ability of a substance to dissolve in a liquid is called its solubility. ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो एबिलिटी होती है कि पानी में वो कितना मिक्स हो सकता है, उसी को हम कहते हैं solubility. ठीक है, the substance that dissolve in water are soluble substances. तो वो सब्सटेंसेस जो पानी में मिक्स हो जाते हैं उसे हम कहते हैं soluble solutions, soluble substances. एग्जाम्पल आप देख सकते हो, सॉल्ट क्या है, सॉल्ट इज soluble in water. तो सॉल्ट आपका पानी में मिक्स होता है। The substance that does not dissolve in water are insoluble substance. ठीक है, और on the another hand side my dear student, the substances which didn't dissolve in water are called as insoluble solution. Example आप देख सकते हो, sand. ठीक है, sand is insoluble in water. Okay, similarly liquids like milk and water mix quickly and are called miscible liquids. उसी तरीके से जब आप दूध के साथ पानी को मिक्स करते हो तो पूरा का पूरा मिक्स हो जाता है, और ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं miscible liquids. ठीक है, टू अदर मिसिबल लिक्विड्स आर इंक एंड वाटर. अब मिल्क और वाटर की तरह ही एक दूसरा हमारा मिसिबल लिक्विड है, उसका नाम है हमारा इंक और वाटर. ठीक है, लिक्विड्स लाइक ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स. उसी तरीके से आप देखोगे ऑयल भी क्या है, लिक्विड है, और वाटर भी लिक्विड है. ठीक है, पर जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे ना, वो मिक्स नहीं होते हैं. ठीक है, दे आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड. इसीलिए ऑयल और वाटर जब मिक्स नहीं होते हैं तब हम इनको कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स. ठीक है, ऑयल ऑलवेज फॉर्म्स एन अपर लेयर ऑन टॉप ऑफ वाटर. ठीक है, अच्छा, अगर ये ऑयल मिक्स, जैसे सैंड मिक्स नहीं होता, वो नीचे बैठ जाता. ऑयल का क्या सीन है, ऑयल पानी के ऊपर फ्लोट करने लगता है. ठीक है, the other two immiscible liquids are kerosene and water. इसी तरीके से जैसे हमारा ऑयल है और वाटर, उसी तरीके से कैरोसिन भी है. ठीक है, कैरोसिन और वाटर भी मिक्स नहीं होते हैं. वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं. क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं? बिकॉज इट कैन डिसॉल्व मोस्ट लिक्विड्स, गैसेस, बिकॉज इट कैन डिसॉल्व मोस्ट सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. ठीक है, हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि वाटर अपने अंदर मैक्सिमम सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो सबको डिसॉल्व कर लेता है. ठीक है, थिंग्स डिसॉल्व फास्टर इफ वी स्टर और हीट द वाटर. ठीक है, अगर आपने शुगर को या सॉल्ट को पानी में डाल के छोड़ दिया, वो एट द एंड ऑफ द डे मिक्स हो ही जाएंगे. लेकिन अगर आप सॉल्ट या शुगर पानी में डालने के बाद उसको तुरंत चलाते रहते हो, उसको मिक्स करते हो ना, तो वो इजीली क्या होता है, वो ज्यादा फास्ट वे में वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी द मेजरिंग लिक्विड्स. अच्छा, अभी तो सारी चीजें हमने देख ली, कौन कौन सी चीजें फ्लोट करती है, कौन सी चीजें श्रिंक हो जाती है, कौन सी चीजें मिक्सअप होती है. ठीक है, अब ये सारी चीजें हमें पता कैसे चलती हैं, इनको कोई मेजर करने का कुछ तो इंस्ट्रूमेंट होगा, तो यही अब हम लोग देखने वाले हैं उनके मेजरिंग लिक्विड्स. आ जाओ. हैव यू नोटिस दैट द मिल्कमैन डिलीवर्स मिल्क इन अ पॉट मार्क्ड विथ नंबर. आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में जो दूध वाले भैया आते होंगे, तो वो क्या करते हैं, वो जब आप लोगों के घर में दूध देते हैं तो उनका जो पॉट होता है जिसमें वो दूध निकाल के आप लोगों को देते हैं, उस पर आप देखो उसमें कुछ मेजर्स लिखे होते हैं, कुछ नंबर्स लिखे होते हैं. ठीक है, दिस मार्क्स और लेबल से हाउ मच मिल्क द पॉट कंटेन. वो मार्क्स आपको ये बताते हैं कि वो जो पॉट उन्होंने अपने हाथों में लिया हुआ है, उस पॉट में किस लेवल तक का, मतलब कितने लेवल तक उसमें दूध भरा हुआ है. Since liquids do not have shapes of their own, they are measured by volumes in liters. ठीक है, लिक्विड्स का कोई शेप अपना नहीं होता. You all know my dear students, इसीलिए ये जिस भी कंटेनर में जाते हैं ये उसका शेप ले लेते हैं. तो इनको हम लोग हमेशा वॉल्यूम और लीटर में ही मेजर करते हैं. ठीक है, सो एग्जांपल यू कैन सी हियर माय डियर स्टूडेंट, लीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम. ठीक है, तो वॉल्यूम जिसमें हम वाटर को मेजर करते हैं, उसकी कौन सी यूनिट है, लीटर है. ठीक है, इसीलिए आप ये नहीं कहोगे 1 किलो पानी, नो, आप कहोगे 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर दिस. ओके, तो लिक्विड्स को हमेशा हम लोग लीटर में मेजर करते हैं. 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स. ठीक है, 1 लीटर में क्या होता है, 1000 मिलीलीटर होता है. 1000 लीटर में जब 1000 लीटर मिलते हैं तो उसको हम 1 किलो लीटर कहते हैं. ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. ओके, एंड 1000 लीटर्स इक्वल टू 1
kiloliter. ठीक है, we buy common liquids like oil, petrol, diesel and milk in liter. ठीक है, तो कौन कौन से लीटर में मेजर्ड हम लोग लिक्विड्स बाय करते हैं? हम लोग ऑयल, पेट्रोल, डीजल और मिल्क लेते हैं. ठीक है, ओके. नाउ कीप इन माइंड फैक्ट, an aerated cold drink produced a fizz when you open its bottle. It has carbon dioxide dissolved in it. जब भी आप कोई कोल्ड ड्रिंक का कैन खोलते होगे या बॉटल ओपन करते होगे तो आप लोग उसके ऊपर से बबल्स देखते होंगे. ठीक है, तो वो क्या है? उसका मतलब ये है कि उस लिक्विड कंटेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर. नाउ कम विद मी, लेट्स सी द रैप अप ऑफ दिस चैप्टर. ऑयल ऑलवेज फॉर्म एन अपर लेयर ऑन टॉप ऑफ वाटर. ठीक है, ऑयल क्या करता है? पानी में कभी मिक्स नहीं होता, वो ऊपर रहता है उसके. वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिसॉल्व मोस्ट सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं. ठीक है, क्योंकि इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस ऑलमोस्ट ये क्या होता है? तीनों फॉर्म मैटर के मिक्स हो जाते हैं. The most common example of runoff water is rainwater. The collected water stored under the ground is called groundwater. Groundwater क्या होता है? जो collected water मतलब जिस पानी को आपने कलेक्ट किया है वो ऑटोमेटिकली वो अंडरग्राउंड में जाते हैं, इसीलिए वो अंडरग्राउंड वाटर कहलाते हैं. 3/4 of the earth's surface is covered with water. Heavy cloud burst and give rain. Okay, my dear students, so this is all about our chapter. Now fact corner. The United Nations has said that a person should get a minimum of 50 liters, 2.5 buckets of water every day. So my dear student, according to UN or means United Nation, ठीक है, United Nation ने एक सर्वे करवाया था, उसके अकॉर्डिंग एक पर्सन को एक दिन में 2.5 buckets यानी 50 लीटर पानी चाहिए. ठीक है, now come with me, let's see the exercise of this chapter. तो उससे पहले OMR शीट का कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं. ठीक है, तो OMR शीट क्या होता है? OMR शीट आपका एक आंसरिंग शीट होता है जिसमें आपको 3 ऑप्शंस या 4 ऑप्शंस दिए होते हैं. ठीक है, तो इनमें से जो भी आपके अकॉर्डिंग सही ऑप्शन है आप उस ऑप्शन के सर्कल को प्रॉपर कलर करेंगे. ठीक है, लेकिन आपने क्या किया? आपने कलर बिल्कुल नहीं किया, छोड़ दिया उसको ब्लैंक. ठीक है, या फिर आपने हाफ कलर किया, टिक किया या क्रॉस मार्क किया. ये चारों तरीका क्या है? OMR शीट में आंसर देने का गलत है. ठीक है, ओके, सो ये क्या है? ये हमारा OMR शीट का कॉन्सेप्ट है. नाउ कम विद मी, लेट्स सी द एक्सरसाइज ऑफ दिस सेक्शन. ए में क्या करना है? टिक द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है. हैवी क्लाउड बर्स्ट एंड गिव रेन. द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन अ लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. ठीक है, प्रोवाइडिंग वाटर फॉर क्रॉप्स इज नोन एज इरिगेशन. फिलिंग द ब्लैंक्स. वाटर इज प्रेजेंटेड इन ऑल थिंग्स दैट वी डैश एंड डैश. ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा आपका. वाटर इज प्रेजेंटेड इन ऑल थिंग्स दैट वी ईट एंड ड्रिंक. सो राइट हियर, ईट एंड ड्रिंक. वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एनी डैश वाटर. वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है आपका? वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एनी रन ऑफ वाटर. ठीक है, स्टोरिंग एनी रन ऑफ वाटर. सी एन आयरन नेल डैश बट अ ह्यूज शिप मेड ऑफ आयरन डैश. ठीक है, तो आयरन नेल का क्या है? देखिए ये रहा. एन आयरन नेल शिंक्स बट अ ह्यूज शिप मेड ऑफ आयरन फ्लोट्स. sinks but a huge ship made of iron floats. ठीक है, the substance that dissolve in water are soluble substances. Okay, so right here soluble. Okay, now dash always forms an upper layer on top of water. Oil always form an upper layer on top of water. So right here oil. Dash does not have shapes of their own. Liquids do not have shapes of their own. So right here liquids. Okay, answer the following in short. Why does the earth look like a blue ball from outer स्पेस? ठीक है, तो अर्थ हमारा एक ब्लू बॉल की तरह क्यों दिखता है आउटर स्पेस से? तो इसका आंसर ये रहा. Our earth looks like a blue ball from the outer space because 3/4 of the planet earth is covered with water.
ठीक है, अब बी क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, वाई डू वी नीड वाटर, हमें पानी क्यों चाहिए, ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा, वी नीड वाटर बिकॉज इफ देयर वॉज नो वाटर ऑन अर्थ देयर वुड बी नो लिविंग थिंग। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, तो आंसर आपको शॉर्ट में देना है, रिमेंबर दिस थिंग। तो वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, चलिए देख लेते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एनी रन ऑफ वाटर। फिर क्या पूछ रहा है आपसे, डी व्हाट आर सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ वाटर, ठीक है, तो सेकेंडरी सोर्सेज क्या है वाटर के, रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर आर ऑल सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ वाटर, तो प्राइमरी क्या है, रेनफॉल है। फिर क्या आपसे पूछ रहा है, व्हाट आर द थिंग्स दैट फ्लोट इन वाटर, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो वाटर में फ्लोट करती हैं, तो आपका आंसर ये रहा, द थिंग्स विच फ्लोट इन वाटर आर ड्राइड लीफ एंड स्ट्रॉ। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन क्या होता है, तो ये रहा आपका आंसर इसका, व्हेन सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट फॉर्म्स अ सॉल्ट सोल्यूशन, सीधी सी बात है, ठीक है। फिर क्या आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी किसको कहते हैं, इसका आंसर ये रहा, the ability of a substance to dissolve in a liquid is called its solubility, ठीक है। फिर क्या है आपका, what are called soluble substances, हम soluble substances किसको कहते हैं, the substances that dissolve in water are called soluble substances, okay। now what are called insoluble substances, तो insoluble substances कौन कौन से हैं, ये रहा, the substances that do not dissolve in water are insoluble substances, okay। now what are miscible liquids and k what are immiscible liquids, ठीक है, तो आपका दोनों का आंसर ये रहा, ओके। when two liquids, okay, when two liquids mix quickly they are called miscible liquids, okay, and when two liquids do not mix they are called immiscible liquids, ठीक है। चलिए नाउ डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, डिस्क्राइब वाटर साइकिल, वाटर साइकिल का आपको डिस्क्राइब करना है, तो आपका आंसर ये रहा, वाटर साइकिल होता क्या है, तो देखिए ये रहा, तो वाटर साइकिल का ये पूरा आपको 6 पॉइंट्स है, तो आपको इसको पढ़ना है और अच्छे से अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके वाटर साइकिल को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। चलिए नाउ द नेक्स्ट, हाउ कैन वी हार्वेस्ट रेनफॉल, हम रेनफॉल, सॉरी इट्स नॉट रेनफॉल इट्स रेन वाटर, ठीक है, हम रेन वाटर को किस तरीके से हार्वेस्ट कर सकते हैं, तो देखिए ये रहा आपका आंसर, we can store rainwater while it is raining and can use it later during the dry season. Rainwater can be collected on rooftops and tank, okay, ठीक है, ये रहा आपका आंसर। फिर क्या आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन हैवी थिंग्स बी मेड टू फ्लोट, ठीक है, हैवी थिंग्स को फ्लोट कैसे करवाया जा सकता है, अब देखिए, heavy things are possible, okay, heavy things are possible to make them float in water by shaping such materials in such a way that they can be made to float, example huge ships made of iron floats। पर आपसे क्या पूछ रहा है, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट मिक्स इन वाटर एंड द थिंग्स दैट डू नॉट मिक्स इन वाटर, आपको एक लिस्ट बनाना है और इसमें वो लिखना है उन चीजों के बारे में, एक तरफ जो वाटर से मिक्स होता है, दूसरी तरफ जो वाटर से मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसको आप टेबल के फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, तो एक तरफ आप लिखोगे द थिंग्स व्हिच मिक्स इन वाटर और दूसरी तरफ आप लिखोगे द थिंग्स व्हिच डिड नॉट व्हिच डजंट मिक्स विद वाटर, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, यहाँ पे ये रहा आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्या है, सॉल्ट शुगर इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, सैंड आपका डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है, ऑयल आपका मिक्स नहीं होता ना डिसॉल्व होता है, ठीक है, लेकिन आपका इंक और मिल्क क्या होता है, डिसॉल्व और मिक्स दोनों हो जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर आपसे क्या पूछ रहा है नेक्स्ट, हाउ इज द लिक्विड्स मेजर्ड, आप लिक्विड्स को मेजर कैसे करते हो, तो आपका ऑप्शन ये रहा, सी liquids are measured, okay, since liquids do not have shapes of their own they are measured by volumes in liter, ठीक है, लीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। फिर उसके बाद आप ये भी लिखोगे 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स, 1000 लीटर इक्वल टू 1 किलोलीटर, ठीक है। चलिए नाउ द नेक्स्ट, E, identify each picture and write the name of the sources of water। अच्छा यहाँ पे ना बहुत सारे सोर्सेज आपको दिए हुए, पिक्चर्स दिख रहा है, तो आपको इनका नाम लिखना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो आपका है ना, ये होता है ट्यूबवेल आपका, ठीक है,
ठीक है, ये है आपका हैंड पंप, ठीक है। अब रेस्ट ऑफ द दो आप अपने से लिखेंगे इसका क्या नाम है, ठीक है। चलिए, नाउ इट्स एक्टिविटी टाइम ए। डिस्कस हाउ यू कैन सेव वाटर इन डेली लाइफ। आपको ये डिस्कस करना है कि आप अपने डेली लाइफ पे, मतलब आप अपने डेली बेसिस पे पानी को कैसे सेव कर सकते हो। बी, लीड अ डिस्कशन ऑन द नीड टू हैव रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन एवरी हाउस, ठीक है। आपको एक डिस्कशन इसमें क्रिएट करना है, डिस्कशन करना है कि किस तरीके से हर घर में रेन वाटर को हमें हार्वेस्ट करना चाहिए, मतलब रेन वाटर को कलेक्ट करना चाहिए और उसको स्टोर करना चाहिए, ठीक है। नाउ सी, टिक द पिक्चर्स इन विच यू कैन सी दैट वाटर इज बीइंग सेव्ड। यहां पे आपको उन पिक्चर्स पे टिक करना है जहां पे आपको ये दिख रहा है कि आप पानी को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो, ठीक है, मतलब सेव हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे जो पहला पिक्चर है, ये बच्चा ब्रश कर रहा है बट इसने टैप को क्या किया, बंद किया है, तो ये क्या है, पानी ये सेव कर रहा है। अब दूसरा क्या है, ये तो पानी बह रहा है, तो क्या ये पानी सेव हो रहा है, बिल्कुल नहीं। थर्ड क्या है, ये भी सेव कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये क्या पानी को सेव कर रहे हैं, नहीं, ये वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग क्या करोगे, पिक्चर्स को देखोगे और जो आपको लगता है कि हाँ पानी सेव हो रहा है, उस बॉक्स में आपको क्या करना है, टिक करना है। नाउ इट्स एक्टिविटी टाइम। सर्कल द नेम्स ऑफ द 7 सोर्सेज ऑफ वाटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। देखिए, यहाँ पे ना एक वर्ड पजल है, इसमें से आपको 7 सोर्सेज ऑफ वाटर को ढूंढना है और लिखना है, मतलब सर्कल करना है, ठीक है। तो देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो एक हमें मिल चुका है, ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल है ना सोर्सेज ऑफ वाटर, तो ये रहा ट्यूबवेल आपका, ठीक है। ट्यूबवेल के बाद आपका और क्या आ सकता है, रिवर, ठीक है। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स 7 में से 2 मैंने आपके लिए ढूंढ दिए, रेस्ट ऑफ द 5 यू नीड टू फाइंड आउट, ओके। नाउ इट्स प्रोजेक्ट वर्क। टेक अ चार्ट पेपर एंड ड्रॉ और पेस्ट पिक्चर्स ऑफ सोर्सेज ऑफ वाटर एंड यूजेस ऑफ वाटर। आपको एक चार्ट पेपर बनाना है, उस चार्ट पेपर में या तो आप पिक्चर ड्रॉ करोगे या तो पिक्चर आप पेस्ट करोगे, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर और साथ ही साथ पानी का हमारा क्या यूज है। राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच पिक्चर्स बिलो इट, ठीक है। और जब आप ये सारे पिक्चर्स ड्रॉ कर लोगे या पेस्ट कर लोगे, उसके बाद आपको उनके बारे में अपने चार्ट पेपर पे लिखना है। Okay, my dear student, this is all about our chapter. Okay, now my dear student, just go thoroughly through this chapter and complete all the exercises. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class. Till then, you have to take very good care of yourself. Bye.